Study IQ IAS. Smart aspirants' number one choice. Hello students, welcome to Study IQ. As we have discussed that Descartes created multiple substances. One that is absolute substance, that is God, and two relative substance. One is mind and another one is body. And that is why he created one problem, that how mind and body are interacting with each other. That was the problem created by Descartes. In this particular scenario, because substance cannot be the multiple substance, substance should be one, right? So, in the series of modern rationalism, the second thinker is Baruch Spinoza. Spinoza challenged that particular view. He was also a mathematician, philosopher. He said that there is only one substance. There is only one substance from where everything is necessarily coming out. Substance, by definition, should not be the two or three or multiple substance. Substance means there is only one substance, which is self-contained, causes sui, that is self-caused, all inclusive. Nothing is outside of this substance, right? So this is the definition given by Spinoza, and he criticized Descartes' multiple substance, which gave rise to naturalism, which gave rise to pantheism, one of the most influential theory of substance. So in this lecture, we will discuss everything about Spinoza, that how divine determinism, how Spinoza's notion of substance leads to divine determinism, that everything is determined. When everything is determined, then we will discuss how we are acting freely. We will discuss everything in this detail. So let's get started. So first thing, before moving ahead, is that there is a Aramb, okay? Aramb sale is going on, and in which you will get 50% off on every course which is offered by Study IQ, whether it is GS or optional. जो भी बच्चे 2027, 2028 और 2029 यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है। 50% ऑफ चल रहा है। आप जितने भी बच्चे हैं जो फिलॉसफी ऑप्शनल मुझसे पढ़ना चाहते हैं, वो फिलॉसफी ऑप्शनल का बैच अभी स्टार्टिंग हुआ है, वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि 2 से 3 महीने के अंदर आपका पूरा ऑप्शनल फिलॉसफी का ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको रिवीजन के लिए, स्पेशली फॉर 27, है ना, बच्चों के पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि दिसंबर तक ही आपको पढ़ना है, और अभी तक यदि आपने ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया है, नाउ यू कैन डिसाइड योर ऑप्शनल, ठीक है। तो फिलॉसफी ऑप्शनल विल हेल्प यू अ लॉट इन सेविंग योर टाइम, ठीक है। तो आप फिलॉसफी ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, SU लाइव कोड का इस्तेमाल आप कीजिए, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि अभी 50% चल रहा है ड्यूरिंग द आरंभ सेल। And if you are finding any difficulty while having access to the course, you can contact on this number. लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये जो सेल है ये लिमिटेड टाइम के लिए आपको मिली हुई है, तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस बैच के कुछ फीचर्स भी मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए, फिलॉसफी का ये जो बैच है, इसमें आपकी कुछ एथिक्स एनरिचमेंट की क्लासेस इंक्लूडेड रहती हैं, जिससे कि आपका एथिक्स का पेपर भी कवर होता है, पहला। और दूसरा, आपका यहाँ पे एथिक्स के साथ साथ एसे की क्लासेस भी इंक्लूड रहती है, तो आपको ऐसे कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यदि मुझसे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, तो ये रहे दोनों के आईडी, टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, आप ज्वाइन कर सकते हैं ये स्कैन करके। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं बरूच स्पिनोजा के कॉन्सेप्ट की, दैट इज सब्सटेंस। कि बरूच स्पिनोजा का जो कॉन्सेप्ट था सब्सटेंस का, वो कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज जो देखने योग्य है वो क्या है, कि जो बरूच स्पिनोजा का सब्सटेंस है, वो ये बोलते हैं कि सब्सटेंस मतलब इस प्रकृति का मूलभूत
जो चीज है वो क्या है, इस प्रकृति के मूल में क्या है, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, उनके मूल, उनका फंडामेंटल एलिमेंट क्या है, उसी को सब्सटेंस कहा। ठीक है, तो आपका डेकार्ट ने ये कहा था कि यार गॉड इज द अल्टीमेट सब्सटेंस और माइंड एंड बॉडी दे आर रिलेटिव सब्सटेंस। बट स्पिनोजा सेड दैट नो, substance is one. If two existed, they would limit each other. So there is only one substance. पहली चीज। दूसरी, this substance is infinite. Okay, nothing exists outside of it. इस substance से बाहर कुछ भी नहीं है। Spinoza is like शंकराचार्य। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा था कि ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म के जैसा दूसरा कोई रियलिटी ही नहीं है। ब्रह्म is devoid of स्वागत भेद, ब्रह्म is devoid of सजातीय भेद and विजातीय भेद। That is, there is no reality apart from substance। एक ही रियलिटी है और वो क्या है, substance। No reality apart from substance and no reality other than substance। सब्सटेंस के जैसी भी कोई रियलिटी नहीं है। नो रियलिटी अलाइक सब्सटेंस, नो रियलिटी अपार्ट फ्रॉम सब्सटेंस। देयर इज ओनली वन रियलिटी एंड दैट इज सब्सटेंस व्हिच इज इनफाइनाइट, व्हिच इज सेल्फ डिटरमाइंड, डिफाइंड स्ट्रिक्टली बाय इट्स ओन नेचर। आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, आप इसको नहीं जान सकते। सब्सटेंस को जानना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट यहाँ पे स्पिनोजा कहते हैं एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। Every determination is negation। आप जितना सब्सटेंस को डिटरमाइन करते जाओगे उतना ही आप सब्सटेंस के ट्रू नेचर को नेगेट करते चले जाओगे। एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। ठीक है, सब्सटेंस को जान पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपने कहा कि सब्सटेंस इज इनफाइनाइट, लेकिन सब्सटेंस के तो इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स हैं। आपने इनफाइनाइट बोल दिया, इसका मतलब आपने बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को इग्नोर कर दिया। एंड दैट इज व्हाई एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। ठीक है, अगेन इट इज द सब्सटेंस इज लाइक ब्रह्म ऑफ शंकराचार्य, है ना। शंकराचार्य जी ने कहा था कि नेति नेति, ब्रह्म कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड इन अ नेगेटिव वे। नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस। ठीक है, इसी तरीके से एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। आप सब्सटेंस को डिटरमाइन नहीं कर सकते, सब्सटेंस को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इट इज इनडिस्क्राइबेबल, सेल्फ डिटरमाइंड, इट इज अनिर्वचनीय। आगे आया इट इज सेल्फ कंटेन्ड, दैट इज कैन नॉट बी मॉडिफाइड फ्रॉम आउटसाइड। सब्सटेंस को आउटसाइड से मॉडिफाई नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मॉडिफाइड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, दैट विच इन इटसेल्फ एंड कंसीव्ड थ्रू इटसेल्फ। ठीक है, इट इज कॉजेसुई, सेल्फ कॉज्ड है, इसका एग्जिस्टेंस किसी की वजह से नहीं आया है। इट इज सेल्फ कॉज्ड, इट इज इटर्नल। ठीक है, सो द फाउंडेशन ऑफ रियलिटी बिगिंस विद अ सिंगुलर सेल्फ एक्सप्लेनिंग सब्सटेंस। ये ऐसा सब्सटेंस है ना, जिसके बाहर कुछ भी नहीं है, हर चीज के मूल में यही सब्सटेंस है। यस, सब्सटेंस इज ऑल इंक्लूसिव एंड दैट इज व्हाई स्पिनोजा का जो ये कॉन्सेप्ट है उससे एक चीज निकल के आई, मेटाफिजिकल मोनिज्म। दैट इज देयर इज ओनली वन रियलिटी। रियलिटी इज नॉट डिवाइडेड इनटू क्रिएटर, क्रिएशन, माइंड, बॉडी एटसेट्रा। देयर इज ओनली वन सब्सटेंस। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो भ्रमेव ना परा। ब्रह्म ही सत्य है, जगत जो हमें दिखता है वो मिथ्या है, और जीवो भ्रमेव ना परा, जीव ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं, जीव ही ब्रह्म है। देयर इज ओनली वन सब्सटेंस, मोनिज्म, मेटाफिजिकल मोनिज्म। पैंथीज्म, पैंथीज्म का मतलब क्या है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। पैंथीज्म, बिकॉज ब्रह्म इज ऑल इंक्लूसिव। ये पूरा ब्रह्मांड ही क्या है, ब्रह्म है। ठीक है,
God is not transcendent judge outside of the universe. God is necessary infinite universe in itself. ठीक है, स्ट्रिक्ट डिटर्मिनिज्म. अब देखो है क्या सीन यहां पे, हो क्या रहा है कि गॉड इज ऑल, है ना, एंड ऑल इज गॉड. मतलब गॉड अपने आप में क्या है, नेचर है, और नेचर अपने आप में क्या है, ठीक है, गॉड इज नेचर, नेचर इज गॉड, एंड गॉड इज सब्सटेंस. ये तीनों एक ही है. और जब ये तीनों एक ही है तो आप जानते हो कि नेचर इज गवर्न्ड बाय नेचुरल लॉज या लॉ ऑफ नेचर, एंड लॉ ऑफ नेचर आर रैशनल, एंड समथिंग विच इज रैशनल इज फिक्स्ड, बिकॉज नेचर इज गवर्न्ड बाय नेचर ओनली, नेचुरल लॉज. और नेचुरल लॉज जो है वो कंटिंजेंट नहीं होते, नेचर आपके हिसाब से नहीं चलता है. स्पिनोजा कहते हैं कि नेचर ना तो किसी को लव करता है ना हेट करता है. गॉड डज नॉट लव, पनिश और विल. गॉड एक्ट सोलली ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन नेसेसिटी. तो यदि गॉड अपने हिसाब से ना तो किसी को प्यार करता है ना हेट करता है, नेचर ना तो किसी को हेट करता है ना प्यार करता है. हम बोलते हैं ना नेचर बड़ा लविंग है, स्पिनोजा कहते हैं कोई लविंग वविंग नहीं है. नेचर इज फुल्ली रैशनल, उसके पास कोई इमोशन नहीं है. नेचर अपने हिसाब से काम करता रहता है. गेटिंग? और जब नेचर अपने हिसाब से काम करेगा तो मतलब जो होना है वो होकर के रहेगा, बिकॉज रैशनल नेचर हमेशा नेसेसिटी को जन्म देता है, यूनिवर्सैलिटी को जन्म देता है, विच मीन्स व्हाट will be going to happen will be necessarily going to happen, and that is why it is known as determinism. इसे कहते हैं डिवाइन डिटर्मिनिज्म, क्योंकि नेचर आपके इमोशंस के हिसाब से नहीं चलता, गॉड आपके इमोशंस के हिसाब से नहीं चलता, वो एक रैशनल नेचर के हिसाब से चलता है. तो इसे कहा जाता है डिवाइन डिटर्मिनिज्म. ठीक है, डिवाइन डिटर्मिनिज्म. आई होप आपको सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मोनिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डिटर्मिनिज्म को पढ़ेंगे. Study IQ IAS, making India smarter and better.